हम वो लर्नर्स चाहते हैं दोज हु आर रेडी विद आंसर्स विद द क्लिक ऑफ अ माउस। जैसे हम मशीन्स के साथ काम करते हैं, कहीं हम ऐसे ही बच्चे तो नहीं बना रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सिग्निफिकेंटली हमारे काम को अफेक्ट कर रही है, द वर्ल्ड अराउंड अस, बट वी मस्ट रिमेंबर एट द एंड ऑफ अ डे इट इज अ टूल। मैम, जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो फॉरेन कल्चर है कि मॉर्निंग में स्टडीज़ करो, इवनिंग में पार्ट टाइम करो, वो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को इन इस ओर जाना चाहिए? Behind every well organized institution, there is a strong guiding force that ensures the smooth and efficient functioning of any academic system. Hi, everyone, and welcome back to our podcast series where we bring inspiring leaders and education experts to share their thoughts and experiences with us. And today, we are proud to welcome Dr. Navdeep Kaur, former principal of San Singh Sukha Singh College of Commerce for Women, who's having the experience of 3 decades in higher education, academic leadership, and institutional development. As a principal, she has worked closely with faculty and students to strengthen academic culture and teamwork. She is a top voice in academic leadership at LinkedIn Platform 2. So let's welcome ma'am and have words with her. Hello ma'am, welcome to our show. So as we all know that every journey has a story behind it. So what is your journey and what is your story? Please tell our viewers. Thank you, Minnie. Nice being here, and I look forward to meaningful conversation. So far as my journey is concerned, it's very ordinary. I would say natural progression. I belong to this very city, Amritsar, born and brought up here. I did my schooling from Sri Guru Harkishan Public School, Okay. then graduation from Khalsa College, and masters and further education from Guru Nanak Dev University campus. Okay. And after completing my education, I joined a college at Jalandhar, the beginning of my career as a lecturer. And I worked there for over 2 years. Then a new college opened here in Amritsar, and being my home city, so I preferred working here. So it was a very good opportunity. I joined as a first lecturer in the college, and within 1.5 years, I was given the responsibility of principalship. Okay. So from 1995 till 2025, so for more than 30 years, I I have been associated with that institution for 3 decades. 3 decades. More than So yeah, okay. Yeah. on the surface of it, it seems a very linear journey. And of Yeah. course it was. Of course, some minor twists and turns are always there in a Always journey, there. but it was, when I look back, it's been a very fulfilling journey. That's really wonderful, ma'am. Really, truly inspiring journey you have. So, just tell us that what makes you to enter in the field of education? Any turning point? Yeah. When I was in BCom, I was inclined towards joining CA because that was considered the ultimate line for commerce students. My teachers, they suggested me to go for teaching, but जैसे हर कोई स्टूडेंट होता है, सुनते सबकी हैं लेकिन करनी करनी अपनी मन अपनी की है, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे भी था कि नहीं, मुझे सीए ही करना है। So during college life, gradually I got involved in various co-curricular activities, quiz, debates, declamation, cultural program को organize करना, host करना. So that aspect of the campus life that was very appealing to me. मुझे उसमें creativity और expression, आपका उस चीज़ इंटरेस्ट ने उसमें बहुत excite जनरेट किया. होने लगा। But still, I was strong on that CA line. ओके। uh, I think in final year I happened to visit a office, so a big office over there. I went for some work. तो मैंने वहाँ का एटमोसफियर देखा तो मुझे लगा कि सीए करके तो ऐसे ही किसी ऑफिस में काम करना होगा. That seemed very dull, boring to me. So within my mind I compared the two. तो मुझे लगा नहीं, college, the campus life, that is where I belong to.
So I would say that it was not some eureka moment. हाँ, लेकिन gradual realization और इन experiences ने मुझे clear कर दिया कि yes, I want to go for teaching. Lovely answer, ma'am. As you are already in you have the experience of education a lot. So, as per your perspective, what should be the education system today? कैसा होना चाहिए आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली इन पंजाब, इन अमृतसर? एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बताएं. एजुकेशन सिस्टम अगर पिछले कुछ सालों का देखें तो इट हैज़ आई वुड से चेंज्ड सिग्निफिकेंटली. स्केल बहुत बढ़ गया है, स्पीड भी बढ़ गई है, और एक्सेस, एनीवन कैन स्टडी फ्रॉम एनीवेयर. कुछ भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज आपके डिवाइसेस पे अवेलेबल हैं. So many और हाँ, platforms सो are मेनी there. प्लेटफॉर्म्स. और एक इक्वालिटी है कि एक बच्चा एक रिमोट एरिया में बैठ के भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले रहा है. सकता है, एक्सेस है. सो आई वुड से इट हैज इम्प्रूव्ड इन स्ट्रक्चर. सिस्टम्स बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्पस, डायरेक्शन वो लूज हो गया है. ज्यादा डेटा, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इस पे हो गया है. तो हम आपको क्या लगता है कि बेनिफिशियल है या चैलेंजिंग है या थ्रेट है? नहीं, देखो, जब भी कोई चेंज होता है उसमें एडवांसमेंट के साथ साथ थ्रेट्स तो होते हैं, चैलेंजेस तो हैं. तो उस पे भी काम करने की बहुत ज़रूरत है. बट वी नीड टू रिफ्लेक्ट कि हम किस तरह के लर्नर्स को शेप करना चाहते हैं. हम वो लर्नर्स चाहते हैं दोज हु आर रेडी विद आंसर्स विद द क्लिक ऑफ अ माउस. जैसे हम मशीन्स के साथ काम करते हैं, कहीं हम ऐसे ही बच्चे तो नहीं बना रहे, ऐसे ही हमारे स्टूडेंट्स तो नहीं डेवलप हो रहे. वो थिंकिंग मोड में पॉज देना, चीज़ों को सोचना, समझना, क्वेश्चन करना, ये कम होता जा रहा है. तो बहुत सीरियस थ्रेट है ये. It needs a lot of reflection on the part of all the stakeholders, I would say. The policy जैसे makers. आप हाँ, एजुकेशन सिस्टम में रहे हैं, हाँ, गर्ल्स कॉलेज आप रन करते रहे हैं, हाँ, तो हाँ. आपको क्या लगता है कि गर्ल्स के लिए किस तरह की एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए या कोई चेंजेस आने चाहिए उनके लिए? चेंजेस तो सबके लिए ही आने चाहिए, खास करके जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी. इस सब भीड़ में कहीं ना कहीं अपनी डायरेक्शन क्या है बच्चे की, वो कहीं लूज हो गई है. तो सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है. वी आर गोइंग बाय ट्रेंड्स. जैसे रील्स ट्रेंड्स में जाती हैं, एक ट्रेंड फॉलो होता है, एजुकेशन भी वैसा ही हो गया है. जैसे आपने बोला कि सेल्फ अवेयरनेस की बहुत बहुत ज़रूरत है, ज़रूरत है. तो सेल्फ अवेयरनेस कैसे स्टूडेंट्स को दी जाए? सेल्फ अवेयरनेस तो बहुत यंगर एज जैसे से शुरू हो जाना चाहिए, फ्रॉम द स्कूल लेवल. ये एक बहुत सैड पार्ट है. हमारे यहाँ जितनी भी चेंजेस आती हैं एजुकेशन में, द पॉलिसी मेकर्स, वट एवर प्रोग्राम्स आर बिल्ट, द एम्फोसिस इज ऑलवेज ऑन हायर एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, जबकि प्राइमरी लेवल पे ही आनी चाहिए. तो हर एक बच्चे को इतना स्पेस देना चाहिए कि वो खुद सोचे, एक्सपेरिमेंट करे, क्वेश्चन करे चीज़ों को, और उसको स्टडी करने का टाइम दिया जाए. We should not rush our children towards reaching some destination. प्रेशर नहीं बिल्ड करना चाहिए. जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत है, वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी डे एंड आफ्टर. तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिनेरियो में स्टूडेंट्स जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, वो अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सिग्निफिकेंटली हमारे काम को अफेक्ट कर रही है, द वर्ल्ड अराउंड अस. बट वी मस्ट रिमेंबर एट द एंड ऑफ अ डे इट इज अ टूल. इट इज अ टूल. इट्स गोइंग टू चेंज हाउ वी वर्क. लेकिन हमें अपना वाई वो क्लियर होना चाहिए, हम क्यों काम कर रहे हैं. स्पीड है, कन्वीनियंस है, तो वो ठीक है. बेनिफिशियल तो रेपिटेटिव है. जॉब्स हैं, वो रिप्लेस कर देगी एआई. लेकिन जो वो मैंने पहले बात की, जो थिंकिंग पार्ट है, डिसीजन मेकिंग है, रियल लाइफ सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिस्क्स हैं. जब आपने डिसीजंस करते हुए पूरा एक होलिस्टिक व्यू लेना होता है, आपने ह्यूमन वैल्यूज देखनी है, एम्पैथी देखनी है, कंपैशन देखना है,
डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो हम्म उसके लिए एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। हम्म तो हमें लर्न करने चाहिए एआई के टूल्स, बट एज टूल्स ओनली। हम्म मास्टर यहीं पे रहना चाहिए, और इस मास्टर को ग्रो करने के लिए एम्पल स्पेस हमें एज एजुकेटर जरूर देना चाहिए। देना चाहिए। मैम हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स स्पेशली आफ्टर 10th और आफ्टर देयर प्लस टू हम्म, दे आर ऑफन गेट कंफ्यूज्ड कि वेदर सम से कि डिग्रीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सम से कि ठीक है एक स्किल हम लर्न कर लेते हैं एंड देन वील बी हैविंग जॉब हम्म। एंड वील स्टार्ट अर्निंग एट द अर्ली एज, तो दैट विल बी ओके। तो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि विच इज ऑन विच थिंग स्टूडेंट्स शुड फोकस मोर ऑन, हाँ, whether ये they should complete their हम्म, academics first, education first, then they should pursue for jobs, or rather learning a skill and हम्म। going ahead Yes, this is a very for relevant earning? question, Hmm. because generally the students are, They are often हाँ, they are confused in often this. confused. यहाँ पे भी मैं वही बात करूंगी, द चॉइस दे शुड बी वेइंग अपॉन शुड नॉट बी वेदर स्किल और डिग्री, they should decide at what level in the long run they are working at, what's Hmm. their aim. For entry level jobs, of course, skill courses, these are very helpful, Helpful. but for high responsibility jobs, refined skill jobs, you need depth of knowledge. Hmm. आपके होराइजन्स भी वाइड होना चाहिए, आपके नॉलेज का डेप्थ भी होना चाहिए, Hmm. जहाँ पे आपने डिजाइनिंग करनी है, And आपने which प्लानिंग will करनी come. है, डिसीजन मेकिंग करनी है, Hmm. आपको हाउ यू कैरी योर सेल्फ थ्रू द वेरियस लाइफ सिचुएशंस, Hmm. हाउ यू डील विद पीपल, हाउ यू हैंडल क्राइसिस, ये Hmm. सब चीज़ें आपको एजुकेशन से आएंगी। आपकी Hmm. कंसेप्चुअल नॉलेज, आपकी इंटरेक्टिव, आपको बिहेवियर पैटर्न्स, Hmm. आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, Hmm. ये चीज़ें आपको क्लासरूम में टीचर्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, और भी तरीके हैं जैसे इंटर्नशिप्स हैं, उनके Hmm. थ्रू आपका ये जो ऑब्जर्वेशन से जो आप लर्न करते हो, एक्सपेरिमेंटेशन से लर्न करते हो, वो आपको जो एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म जो देता है, वो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी देती है, क्लासरूम देता है, कैंपस Classrooms. लाइफ देती है। बिल्कुल ठीक हाँ। कहा मैम, बिल्कुल ठीक। मैम जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो फॉरेन कल्चर है कि मॉर्निंग में स्टडीज़ करो, इवनिंग में पार्ट टाइम करो, वो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को इन इस ओर जाना चाहिए? शुड दे अडॉप्ट दिस फॉरेन कल्चर? देखो, कोई भी चीज़ हम इसलिए अडॉप्ट करें कि हाँ वो लोग कर रहे हैं हुँ, तो ये तो सही बात नहीं होगी। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। अदरवाइज पढ़ाई के साथ काम करना इट्स अ गुड थिंग, इट मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल। हुँ, हुँ। आपको सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, पैसे की वैल्यू, हुँ, हुँ, जो आप हुँ। रिसीव कर रहे हो एजुकेशन, उसकी वैल्यू आती है। दिस इज गुड। और एक्सपोजर, अगेन एक्सपोजर विद इंटेंट कि आप सीखने के लिए जा रहे हो, तब तो पार्ट टाइम जॉब जो है वो बहुत अच्छा है। हुँ। ऑफ कोर्स उसमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, अगर हुँ। आपको वो जॉब आपका टाइम भी ले रहा है और आपकी मेंटल एनर्जी भी सारी उसमें कंज्यूम हो रही है, और आप एजुकेशन को बिल्कुल ही साइड लाइन कर रहे हो, हुँ। फिर वो पर्पस उसका डिफाई हो नहीं, तो जाएगा। दैट डिपेंड्स सो दे अपॉन द शुड ट्राई स्टूडेंट। टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन both बोथ। of these things. हुँ, Otherwise, of course, say initial year में ना सही, half way through your degree, आप सेकेंड ईयर हुँ, में हो, फाइनल ईयर में हो, इंटर्नशिप कर लो, पार्ट टाइम जॉब कर लो, बहुत अच्छी बात है। हुँ, दैट विल हुँ, मेक यू मोर नॉलेजेबल, आई वुड से मोर वाइज ऑल्सो। हुँ। तो मैम एनी पीस ऑफ एडवाइस जो हमारे स्टूडेंट्स को आप देना चाहेंगे टू बिल्ड देयर करियर? दे शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। हुँ, जब चीज़ें सीखते हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं, क्लासरूम में सीख रहे हैं, रादर ऑनलाइन में, आई वुड से कि दैट इज़, आप बहुत किसी अच्छे रिसोर्स पर्सन का, एक्सपर्ट का लेक्चर सुन रहे हो, इट्स मेयरली ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अनलेस यू पॉज, यू रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड अप्लाई दैट नॉलेज। तो हुँ, ऑनलाइन में खास करके सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ वो हुँ, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हुँ, एक्सेसिबिलिटी दे रहा है, तो आपके लिए वो, जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आप हुँ, सीखोगे नहीं। तो सीखोगे। सिमिलरली जब आप क्लासरूम में ही होते हो तो एडवांटेज होता है कि आपका टीचर के साथ इमीडिएट कनेक्ट है, आप पूछ हुँ, सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन एफर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आजकल एफर्ट पे कम जोर दिया जा रहा है, हम जल्दी हुँ। से कहीं पहुंच के कुछ अचीव करके अपना स्टेटस अपडेट करना चाहते दे आर हैं। ऑलवेज़ इन हरी, हाँ, वो लाइक नहीं, उनको होता इट्स है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग पे प्रोसेस। करो,
और यू विल अचीव। आपका फोकस विद टाइम, दो चीजें हैं, हाँ, क्योंकि मैं कहूंगी कि डाउट्स और अनसर्टेनिटीज हमेशा रहती हैं स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट्स हैं उनके तो माइंड में हमेशा हमेशा ये है रहता ही है, है, दिस लेकिन इज किसी चीज का डाउट है तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, उसको पूछना चाहिए। तो सिंसेरिटी और कंसिस्टेंसी, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, दैट इज ऑलवेज रिवार्डिंग। आप अपना काम अच्छे से करते रहो और लगातार करते रहो, रुकना नहीं है। रुकना पॉज नहीं। ले सकते हो, जी जी। आसपास देख सकते हो, सोच हाँ। सकते हो, समझ सकते हो, कोई डायरेक्शन चेंज करना है कर सकते हो, लेकिन ये ना सोचो कि बस इट इज अब अ हो ग्रेजुअल गया, प्रोसेस है, अब चलते हाँ ही जाना हाँ, है, ये बस नहीं सोचो चलते कि बस जाना है, अब एक रुकना एंड नहीं है, अब हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं करना। ऐसा है। जिंदगी में कुछ नहीं होता। मैम जैसे बच्चों ने सपोज अपनी ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद ग्रेजुएशन इवन +2 भी के बाद भी जैसे होता है ना कि इंटर्नशिप्स आर इम्पोर्टेंट, हम्म कॉर्पोरेट टूर्स आर इम्पोर्टेंट, इंडस्ट्री विजिट्स इनको दिखाने चाहिए। हम्म हमारे टाइम तो ऐसा कुछ होता नहीं था, लाइक व्हेन वी वर हम्म स्टूडेंट्स एंड व्हेन हम्म वी वर इन कॉलेजेस, हम्म तो दैट फैसिलिटीज वर नॉट देयर एट दैट टाइम। तो हम्म आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज दी जा रही हैं, हम्म ठीक है। द कंपनीज लाइक अस, हम लोग ये जैसे करते हैं कि स्टूडेंट्स का माइंडसेट थोड़ा और ग्रो। तो हम्म आपको क्या लगता है कि हाउ एंड व्हाट टू व्हाट एक्सटेंट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर द गर्ल्स? This is very important. Definitely, it must be part of the करिकुलम। curriculum, ओके। curriculum or academic programs, wherever. जो भी इसमें इसको इंक्लूड कर सकता है वो ज़रूर करे। हाँ, इसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक रिकॉर्ड पर्पस के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एक रिपोर्ट बनाने के लिए किया जा रहा है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ एक्सपोजर आपको नहीं सिखाता। आप ऑब्जर्व करते हो, कहीं पे जाते हो, अब कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है, तो किसी इंडस्ट्रियल विजिट पे जाते हो तो वहां पे जाके वो देखे कि एक्चुअली वो डाटा प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, है ना, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, दिस ट्रैक कैसे प्रैक्टिकल करते नॉलेज हैं। इज हाँ मोर इम्पोर्टेंट देन हाँ, थ्योरेटिकल तो नॉलेज, कॉस्ट व्हाट आई अकाउंटिंग बिलीव। उनकी जो है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग उनके प्राइसिंग डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करती है, तो वो सरफेस लेवल का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर ट्रिप फिर तो होगा। वो जैसे हाँ बुक्स रीड की, पेपर दिए एंड काम खत्म, हाँ, दैट्स इट, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। लाइक वो सिर्फ प्रैक्टिकली रिक्रिएशन के लिए नहीं होना चाहिए, ना ही वो हाँ। फॉर्मेलिटी होना चाहिए। इट शुड बी जेन्युइनली अ लर्निंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक मैम, परफेक्ट आंसर्स। कुछ ऑनलाइन लर्निंग के बारे में बताएं, ऑनलाइन लर्निंग, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज के लिए तो बहुत ही फैसिलिटीज ये सब हो जाता है, स्टिल द स्टूडेंट्स, some students are from rural areas, they do not have access for online learning, so how will they update themselves? हाँ, ऑनलाइन पे बहुत रिसोर्सेज हैं, उनमें इतनी समझ होनी चाहिए या उनको गाइडेंस देनी चाहिए कि कौन से सोर्सेज हैं जिनको उन्होंने टैप करना है। जो कंटेंट वो देख रहे हैं वो वाकई जेन्युइन हो, वैल्यू एडिशन करता हो, जो भी स्किल या जो भी एरिया ऑफ नॉलेज वो परसू करना चाहते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है कि सिर्फ लेक्चर सुन लेने से, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेने से या पढ़ के एक असाइनमेंट कर लेने से लर्निंग नहीं होती। तो वो थॉरली एफर्ट पुट करना, उनकी मतलब वो ओनस सारा स्टूडेंट पे खुद आ जाएगा ऑनलाइन में। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो रूरल है, अर्बन है, या इवन मिड करियर प्रोफेशनल है, कोई भी है, ऑनलाइन एक वैल्यू एडिशन है। आप एक मेजर प्राइमरी काम कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, एक डिग्री कोर्स कर रहे हो, आप स्किल करना चाहते हो साथ में, तो आपके पास टाइम का या एक्सेसिबिलिटी का इशू है, तो आप ऑनलाइन सोर्सेज से बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप प्रोफेशनल हो, आप अपनी अपडेशन करना चाहते हो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, आप ऑनलाइन करो, बहुत अच्छी फैसिलिटी है आपके पास, और आपके पास तो समझ भी है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जो स्टूडेंट के पास एम्पल टाइम है और वो और कुछ नहीं कर रहा, वो सोचे कि मुझे सिर्फ ऑनलाइन करके ही अपना एजुकेशन प्रोफाइल या स्किल प्रोफाइल बिल्ड करना है, उसमें मुझे लगता है कि सेकंड थॉट्स जरूर करना चाहिए। आजकल रूरल एरियाज में भी एम्पल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं। ऑनलाइन एजुकेशन टू इन नटशेल उसको कॉम्प्लीमेंट करे, रिप्लेस ना करे हमारी रेगुलर एजुकेशन को। Ma'am, from your perspective, what do you say about project training?
some students होते हैं ना कि like paid off projects बना दिए, submit करा दिए, and they just get the part, and inwardly they don't have the knowledge हम्म, what they are making, what they are submitting. तो when viva comes तो they are all blank. तो like जैसे आप भी अपने कॉलेज यू आर रनिंग गर्ल्स कॉलेज, तो आपका क्या क्राइटेरिया, क्या आपकी थॉट है इसके बारे में? प्रोजेक्ट ट्रेनिंग शुड इट शुड बी द पार्ट ऑफ करिकुलम और नॉट? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप बाहर से करवा लेते हो, पेड करवा लेते हो, तो पर्पज ही डिफाई हो गया। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए तो आपको कही गई है। तो जब तक आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चा नहीं करता, या उसको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया गया, या उसको ऐसी फैसिलिटी नहीं देगी, तो वो उनके पार्ट पे इफेक्ट करेगा। हाँ, वो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, या वट एवर इज द रीजन। आई डोंट थिंक इट वुड बी लैक ऑफ रिसोर्सेज, बट लैक मुझे ऑफ लगता है कि विल ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स इनको सीरियसली लेते ही नहीं है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग को। इसीलिए कहा गया कि इंटर्नशिप्स करवाई जाए ना। जब बच्चे को फील्ड एक्सपीरियंस होता है, उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाती है, उसके आसपास प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, आप जैसे बैठे हैं, वो एनवायरनमेंट है, उसे पता है कि अगर मैं इस लेवल पे पहुंचना चाहता हूं तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। उसको उस प्रोजेक्ट की वैल्यू भी समझ आएगी। हो सकता है क्लासरूम में उसे प्रोजेक्ट जो है वो एक फॉर्मेलिटी लग रहा हो कि मुझे सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल करनी है। अगर हम उसको वहां से उठा के इंटर्नशिप के लिए भेज दें तो उसको समझ भी आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। या जो उसके पार्ट पे हिच है प्रैक्टिकल काम करने की, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल का बहुत फर्क होता है। उसको लगता है जो मैंने पढ़ा था वो उसकी एप्लीकेशन मुझसे हो नहीं रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अगर हम उसे राइट काइंड ऑफ गाइडेंस देंगे तो वो उसकी वो हेसिटेशन या जो उसका नॉलेज गैप है हम उसको भी कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत क्लियर और स्ट्रॉन्ग विल एजुकेटर्स की, स्टूडेंट्स की भी होनी बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी पेरेंट्स की भी बहुत ज़रूरी है। कई बार पेरेंट्स भी चीज़ों को कन्वीनियंट देने के लिए बच्चे को हर चीज़ का रेडीमेड सोल्यूशन जो है वो सपोर्ट कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। जो काम उसने खुद करना है, जिस प्रोसेस से उसको खुद को निकलना है, वो करके ही सीखेगा, वो ऐसे नहीं सीखेगा। और वही चीज़ फिर उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को भी अफेक्ट करेगी। वाइवा में, इंटरव्यूज में, काम में, उसमें वो कॉन्फिडेंस So नहीं that means आएगा। these practical trainings are much more बहुत important जरूरी। for them. आप कि जितने इंटरनल नॉलेज के लिए तो what I हाँ feel कि उनको हाँ ये होना चाहिए कि जो वो लिख रहे हैं, जो वो सबमिट करा रहे हैं, they have the deeper knowledge for that. yes, confidence never comes from listening or speaking or merely being part of the group. It's only when you do the work, you take the responsibility, you own your work, only then clarity comes and confidence follows clarity. Any piece of advice for the parents? पेरेंट्स को कि ना खुद स्ट्रेस लो और ना स्ट्रेस दो। बच्चे को टाइम दो, रूम दो, उनको देखो, उनको समझो। और मुझे लगता है कि उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे कंसंट्रेट हाँ, करें नहीं या उनको, फोकस करें। वो जब देखते हैं कि इसको कोई चीज मुश्किल लग रही है, कोई चैलेंजिंग लग रही है, तो देखो कि क्या प्रॉब्लम है और उसको उसमें से निकलने के लिए सपोर्ट करो। मीन्स इट्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। एकदम से हम आजकल बहुत इंस्टेंटली चाहते हैं कि उसका बच्चा वहां पे पहुंच गया है, वो कंपैरिजन, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अपनी जगह यूनिक है, उसको उसकी जर्नी में ना तो उसको बहुत ज्यादा आराम दें कि हाँ तू कुछ ना कर, सारा सोल्यूशन हम ही देंगे, और ना That is ही also उसको something कहो wrong. कि नहीं ये नहीं करेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। And ये this दोनों ही एक्सट्रीम्स जो हैं वो खराब करते हैं। this also gives a bad impact on them also. Yeah, generally I see this Gen Z is getting cooler and cooler all the day Exactly. because of the undue worries and anxieties the parents they have taken upon themselves. तो ये उसका भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो खुद भी थोड़ा काम रहें, चीज़ों को समझें और बच्चे को भी टाइम दें ताकि वो भी अपना पाथ जो है वो डिस्कवर कर सके। Now we are around the closing of our podcast. So my last question would be, beyond degrees and skills, what actually is being educated? हम्म मैं कहूँगी if one is able to think clearly, express clearly, and in a position to make responsible choices, only then one is truly educated. Thank you so much, ma'am. And I really hope कि हमारे students को आपके valuable answers बहुत help करें. So thank you so much. I hope so. Yeah. Thank you. And for our viewers, thank you so much for watching us. If you like our podcast,
So do share and subscribe it. And we'll see in the next podcast with more conversations, more insightful conversations. Till then, stay tuned and keep learning, keep growing. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am.